आज का वीडियो इज ऑल अबाउट माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लाइक प्रोसेस कैसे करते हैं द न्यूज। बोलता है ना कि इतने सारे इमोशंस, एड्रेलिन रश ना इंस्टिंक्टिवली नहीं आता है, मेरे लिए एटलीस्ट नहीं था। लाइक इवन द हस्बैंड्स आर ऑल इन, सबके केस में ऐसा नहीं होता है। Okay, so now you know let's talk about the major symptoms. So I had to be alone over here and he went to work. I was weeping. I ate khichdi the most. Like what were the changes that we made? अभी तक I'm not eating for two. I 100 नहीं 1000% recommend कि आप भी ये बुक रीड करो। उसमें every week का growth दिखाता है। Good thing that you guys should do as a couple. मतलब I took maternity pillow from till date I don't have any back issues or he has to take care of me as well as the baby. I just have to take care of the baby, right? So hey guys and welcome back to our channel The Random Explorer. So आज का वीडियो इज ऑल अबाउट माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लाइक मेरा एक्सपीरियंस क्या था, क्या सिम्टम्स थे, क्या चेंजेस आए थे, what were the changes that I also made in my life and a lot more. So basically like you know when you talk, like when you come to know कि आप pregnant हो, first thing that you do is Google a lot of things. Like I know मैंने किया था, अभी I don't know how on other side of the cam you guys are doing, लेकिन मेरा यही था कि कुछ भी मतलब मैं खाती थी तो मैं गूगल करती थी, कुछ भी ऐसे लाइक यू नो वियर्ड थिंग्स होती थी तो आई वुड जस्ट गूगल। सो मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे वो प्रोसेस में एंड इन दैट लाइक यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैड हेल्प मी समवेयर। मतलब होता है राइट कि कुछ रिलेट कर पाते हैं, देन यू फील दैट या ओके आई एम नॉट द ओनली वन। ये होता है, ये नॉर्मल है। सो आज इसीलिए मेरे को मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करना था दैट how I felt and what were the things that happened in my life in the first trimester. And so yeah, I'm creating this video. By now if you haven't subscribed to my channel, make sure that you do, क्योंकि बहुत सारे baby related, बहुत सारे shopping related, our whole journey, our story, everything हम share करते हैं ये channel पे. So do hit that subscribe button right now and make sure that you like this video as well. So yeah, let's start the actual video. I'm already very late in making this video, but मेरे को पता था that I have to create. तभी बहुत सारा कुछ चल रहा था हमारी लाइफ में भी, तो इतना full fledged टाइम नहीं मिला था. But right now, like I had written down all the notes from that time only, so I have everything with me. So yeah, let's start the video. So पहले ना थोड़ा background में बता देती हूँ. So we came to know like I'm pregnant on the day of Dashera, and within 15 days we had to make our move from Canada to US. तो it was like you know very quick thing for us. मैंने वो vlog मतलब वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. So you can watch my previous like how was our journey of like you know how was our story when we came to know we were pregnant, what was our journey of pregnancy like, सारे scans ये वो सब मैंने अपलोड किए हुए हैं. So you can watch that as well. So yeah, होल बैकग्राउंड लाइक डिटेल में उधर रहेगा, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ओवर हियर कि प्रोसेस कैसे करते हैं द न्यूज़. एंड ऑनेस्टली मेरे को इतना श्योर नहीं था दैट आई वाज प्रेग्नेंट. हर्ष वाज काफ़ी श्योर दैट नो दिस टाइम आई थिंक दैट यू आर. सिम्टम्स मेरे को कुछ भी नहीं थे तभी. प्लस वी वर लाइक कि लेट्स सी, हम लोग को यूएस वैसे भी जाना था. सो वी वर लाइक ओके वील टेक इट स्लो. हमें इतना रश भी नहीं था तभी, बट स्टिल we were like yeah very excited. So when that pregnancy test came out to be positive, oh my god, बोलता है ना कि इतने सारे emotions all at once, like वो adrenaline rush जो रहता है ना, that was on next level. So that was our case and we were really very happy at that in that moment, like you know. Plus we said like to our family, मेरे घर पे बताया, हर्ष के घर पे बताया, तो सब बहुत मतलब happy vibes and everything. लिटिल नेक्स्ट डे वी डिड आवर ब्लड टेस्ट, उसमें भी पता चला पॉजिटिव है. सो वी गॉट अ रिलीफ कि हाँ चलो सब ओके है, लाइक इट इज़ नॉट ओनली कि हमने वो एट होम टेस्ट किया. वो होने के बाद जब इवनिंग में लाइक यू नो व्हेन वी सैट डाउन एंड वी एक्चुअली रियलाइज्ड दैट या वी आर प्रेग्नेंट, इट वाज जस्ट लाइक नाउ व्हाट नेक्स्ट. एंड पता नहीं यार, वो इतना ओवरवेलमिंग फीलिंग हो गया था कि वी वर हैप्पी, we were nervous, we were excited and we couldn't express anything. So my one thing, I don't know like सबको ये फील होता है कि नहीं, but यार take it slow, it is okay. मतलब रश नहीं है कि जैसे पता चला and you are like you know hyperactive on everything कि oh yeah now I'm pregnant, now I don't need to do this, I can do this and all.
बट इतना इंस्टिंक्टिवली नहीं आता है, मेरे लिए एटलीस्ट नहीं था. सो फॉर अस एंड मेनली हमें 10 दिन में घर पैक करके यूएस मूव होना था. सो उसका स्ट्रेस एक तो अलग ही चल रहा था. सो it was like we took time, we took a day or two to process everything, but we were back to what we were doing. So and first month में इतना पता भी नहीं चलता है, like you know you don't have that crazy symptoms or anything, तो ध्यान भी नहीं रहता है कि actually you are pregnant. So it's just कि yeah you are aware but still you have to get things done. So I was totally in that zone only. Plus I came to know when I was 3 weeks pregnant, so it was very very early stage. तो हमें भी इतना ये नहीं था. So हम लोग का सिर्फ रोड ट्रिप थोड़ा हमें डिले करना पड़ा बिकॉज हमें फर्स्ट स्कैन बोलते हैं कि 6 वीक्स में करना रहता है. सो ऑलमोस्ट मेरा 5.5-6 वीक्स था. सो आई हैड टू गो फॉर द स्कैन. सो उसके लिए वी हैड टू लाइक यू नो मैनेज आवर रोड ट्रिप एंड एवरीथिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट feeling wise it was overwhelming, it was exciting, it was little nervous and like बोलते ना मेरे पास आज भी words नहीं है to describe actually what we were going through, but yeah it was crazy happy you can say. तो वैसा वाला scene था. So this was like the first few days, like you can tell the first month of your pregnancy. So that was our scene. Later next 2 months, like first trimester is of 3 months, right? So next 2 months were little acceptable, but not like, I again won't say that it was 100% because तभी भी like we have seen कितना मैं इंस्टा पे ही देखती रहती हूँ. I put myself out there also, right? तो हम लोग देखते हैं कितनी सारी reels and all, like even the husbands are all in talking to the tummy, like you know clicking the pictures and everything, but सबके केस में ऐसा नहीं होता है. हमें बहुत awkward लग रहा था to talk to tummy and like you know वो बहुत weird लग रहा था because at that time you can't even see a bump. कुछ नहीं पता चलता, ना ही movements पता चलती है बेबी की, कुछ नहीं समझता है. So you're just like कि okay yeah I'm pregnant I know but we don't need to do all these things. So even if that happens it's okay. Give your husbands also some space I would say because हर्ष को भी हम मतलब बात करते थे. वी वर टॉकिंग, वी वर प्लानिंग थिंग्स, वी वर थिंकिंग ऑफ थिंग्स, लेकिन ऐसा मतलब वी डिडंट डू सच चीजी स्टफ. इफ यू सी मेरा कैमरा रोल भी हमारे पास स्टार्टिंग के इतने पिक्चर्स भी नहीं है. इवन इफ वी वुड क्लिक इट वुड बी जस्ट लाइक यू नो हैविंग ऐसे हार्ट ऑन द टमी एंड दैट्स इट. इट वुड नेवर बी लाइक क्लिकिंग द बम्प पिक्चर्स और समथिंग लाइक दैट. तो ओके वो भी आई फील दैट इज अ फेज एंड it's okay to take your time. Okay, so now you know let's talk about the major symptoms. So like I said कि first month में मेरे को कुछ भी नहीं था. No vomiting, no nausea, not like you know no fatigue, nothing. But after the first month like ended 4 weeks जब हो गया उसके बाद से I started noticing little things. And major thing for me during my entire first trimester was fatigue. Fatigue like एक्सट्रीम अल्ट्रा मैक्स प्रो यू कैन से. इतना मैं थकी रहती थी. आई वुड लाइक यू नो टेक अ शावर, मतलब हेयर वॉश किए रहते हैं तो वो किया, ब्लो ड्राई किया और आई वुड गेट सो टायर्ड आई वुड नीड अ नैप अगेन. मैं कुछ भी काम करती थी मेरे को नैप चाहिए. सो इवन आफ्टर स्लीपिंग फॉर गुड 8 to 9 hours I would again sleep for 2 hours like you know and not like in the afternoon or something, immediately after taking shower. So supposedly I woke up at 8 or 9 तो मैं अगेन 11-12 बजे मैं सो जाती थी. तो इतना मेरे को मतलब आई लिटरली मैं बहुत थक जाती थी. रात को भी मेरा 9-9:30 बैटरी वुड बी टोटली डाउन कि नहीं बस अब मेरे से होगा ही नहीं. एंड दैट इज ऑल्सो लाइक कि बहुत सारे वीडियोस मैंने वो भी देखे थे दैट यू आर ग्रोइंग अ ह्यूमन इनसाइड यू, लाइक यू नो इट्स योर बॉडी रियली वर्क्स 2x times, like more than 2x times. So that is also okay. So fatigue was my first major symptom and second was I was getting heartburn a lot. like मेरे को ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहा है मेरा, like lots and lots of heartburn, acidity जो बोलते हैं. तो वो भी मेरा एक बहुत मेजर सिम्टम रहा है स्टार्टिंग से. मेरे को अभी तक नॉशिएटेड फील नहीं हुआ है या ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है, बट या heartburn, fatigue during first trimester and I was very emotional in first trimester. मेरा I am a girl जो
मेरे को रोना नहीं आता बहुत जल्दी, कोई भी इमोशनल मूवीज लगा दो, मतलब मेरी खुद की शादी पे भी मैं नहीं रोई थी, इवन इफ यू सी प्रेगनेंसी रिवील वीडियोस और एनीथिंग, कहीं पे भी आई कांट क्राई एज मच, लाइक मेरे को नहीं होता है. बट इन माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर आई हैव क्राइड अ लॉट. मेरे को याद है जब हम यहाँ मूव हुए थे एंड हर्ष हैड टू गो टू वर्क फर्स्ट डे. इतने टाइम हम साथ में ही रहे हैं, लाइक कनाडा में भी ही वॉज वर्किंग फ्रॉम होम एंड एवरीथिंग. सो आई हैड टू बी अलोन ओवर हियर एंड ही वेंट टू वर्क. आई वॉज वीपिंग, मतलब मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था. आई वॉज लाइक आई डोंट नो वाई, बट या बहुत बहुत रोई हूँ मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स. इवन फॉर हैप्पी थिंग्स आई यूज टू क्राई कि हाँ किसी ने कुछ बता दिया, कोई किसी को हम लोग ने प्रेगनेंसी न्यूज़ बताई एंड दे आर हैप्पी एंड दे वुड लाइक कॉन्ग्रेचुलेट, तो भी मेरे को रोना आ जाता था. ओह लाइक यू नो दैट फीलिंग. सो I was very emotional. I was extremely fatigued and major heartburn अभी तक है symptom, like it's crazy. Next is on food aversions and cravings. तो cravings honestly फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बोलते भी है इतना नहीं आता है. मेरे को भी ज़्यादा कुछ क्रेविंग नहीं था. आई ओनली क्रेव्ड सेकेंड मंथ में. मेरे को ब्रेड का क्रेविंग बहुत हो रहा था, कुछ भी लाइक यू नो विथ ब्रेड सैंडविचेस खाने का मन एंड ऑल दो स्ट्रीट फूड खाने का मन, बट मेजरली हैविंग ब्रेड्स, इसमें चाट वगैरह वैसे भी कुछ नहीं. एंड सेकेंड वॉज मेरा बाहर खाने का मन बहुत कम कर रहा था. लाइक आई वॉज नॉट लाइकिंग ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्यूजीन्स. मेरे को सिर्फ ऐसे घर का बनाया हुआ खाना, मतलब मेरे हाथ का या हर्ष ने बनाया, उतना ही खाने का मन कर रहा था. आई एट खिचड़ी द मोस्ट, लाइक बहुत ज़्यादा खिचड़ी खाया है. एवरी वीक में आई गेस 2 times या 3 times लाइक लंच और डिनर हम बनाते ही थे, उतना मैंने खाया है. एंड फूड एवर्जन्स लाइक आई सेड, बाहर का खाना, एंड मेरे को स्वीट पसंद नहीं था. सो आई एम अ गर्ल जिसको डेजर्ट बहुत अच्छे लगते हैं, बट अचानक से वो चेंज हो गया. एंड मेरे को थ्रू आउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने कुछ मीठा नहीं खाया. नो आइसक्रीम्स, नो चॉकलेट्स, नो इंडियन स्वीट्स, नो डेजर्ट्स, नथिंग. लाइक आई डिडंट टच शुगर, उतना आई कैन लाइक यू नो टेल यू. सो दिस वॉज माई. एंड ऐसा भी नहीं था मतलब कि खा लिया तो क्या, लेकिन मन ही नहीं करता था. इवन सामने रहता था तो नहीं यार. हम लोग यहाँ मूव हुए ना, उस दिन ड्रेसलेशेस लेके आया था हर्ष. सो नहीं, हम लोग ही गए थे खुद लाने के लिए. वी गॉट इट. आई वॉज एक्साइटेड टू ईट. मैंने वो सिर्फ वीडियो हम शूट कर रहे थे, वो 1 bite खाया रहेगा. पूरा केक लाइक लिटरली फॉर 5 days इट वॉज इन द फ्रिज. एंड हर्ष ऑलवेज टेल्स कि इतना तो कभी नहीं रहा रहेगा, फिर उसने ही खत्म किया था. So yeah, sweet was a big no in the first trimester. Next what were the changes that we made in our lifestyle. So सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया. आई नेवर हैड ब्रेकफास्ट. मैं लंच डिनर एंड मिड स्नैक्स मतलब उतना ही खाती थी, तो ब्रेकफास्ट का आदत ज़रा भी नहीं था. सो आई started doing breakfast because my doctor also said that at least like you know तो dinner थोड़ा light कर, skip कर, वो चलेगा, लेकिन don't skip the first meal of your day. So breakfast करना start किया. I did not eat for 2. मैं अभी तक I'm not eating for 2. I eat only what I feel like eating, what I have always been eating. So I'm not even increased my portion size or anything. जितना हाँ भूख लगता है तो मैं खा लेती हूँ, वैसा भी नहीं है कि आई जस्ट लाइक यू नो स्टे हंग्री एंड ऑल, वैसे नहीं करती. बट दे से यू शुड ईट 6 meals 8 meals, मेरे से नहीं होता है वो. दैट आई विल टॉक इन डिटेल इन द अदर वीडियो. आई एम थिंकिंग टू मेक अबाउट वन गुड टॉपिक. सो उसमें मैं ये सारा चीज़ भी कवर करूँगी, दैट वाई इट वॉज. But for now, like yeah, I didn't eat for 2. I didn't eat 6 to 8 meals. I started doing breakfast, yes. So breakfast, lunch, dinner, and evening में मैं या तो जूस पीती हूँ या तो फ्रूट्स खाती हूँ. And first trimester से लेके अब तक it has been throughout like you know वैसे ही. Next I started coconut water in the morning. They say कि for a sac like you know amniotic fluid and everything, you should intake of water should be good. And उसके लिए बहुत सारा मतलब मैं पानी इतना पी नहीं सकती, इतना आदत नहीं रहता राइट हमें तो. बट एटलीस्ट आई मेक श्योर कि रोज़ मॉर्निंग में एवरी डे टिल डेट, विंटर हो समर हो रेन्स हो, बट आई ऑलवेज हैव कोकोनट वाटर. एंड आई हैव इट फ्रॉम कर्कलैंड. कॉस्को से हम लाते हैं ऑर्गेनिक वाटर. इट्स जस्ट कोकोनट वाटर, नो एडेड शुगर एंड नथिंग. सो आई फील दैट अगर आप इंडिया में हो, ये देख रहे हो, हैव फ्रेश वाटर, यू गेट इट सो ईजिली. एंड इफ नॉट देन या यहाँ पे हो तो कॉस्को का बहुत अमेजिंग है वो. सो ट्राई दैट. आई लीव अ पिक्चर और समथिंग ओवर हियर.
So I started having that. Then फूड वाइज हमारा लाइफस्टाइल वैसे भी है थोड़ा, हम ऑर्गेनिक खाना और वो सब ज़्यादा खाते हैं. वी डोंट यूज़ मच ऑयली फूड. हम मोस्टली एयर फ्रायर चीज़ें खाते हैं. वेजीज एंड ऑल सब हमारे डाइट में ज़्यादा रहता है. लाइक यू नो, इवन इवनिंग में हम सैलड्स खा लिए. नॉट एग्जैक्टली सैलड बट मोस्टली सौते वेजीज हो गया, फिर स्टर फ्राई हो गया वैसे. So we have that habit from a long time now. So that was not a major change that we had to make. But yeah, we needed to increase some of the greens जो इतना हम नहीं खाते थे. So yeah, palak on in every grocery I have palak, and हम लोग week में every week like one item should be there of palak. That we make sure. Spinach. And skincare wise also, when we were thinking of like you know doing starting this whole journey, I had changed a lot of my routine. I switched to clean skincare, clean makeup, not 100% but yeah, a lot. So yeah, those were some of the changes that I made. I started taking my prenatals, like what my doctor suggested. I just took that. यहाँ आके वापस उसने भी डोज चेंज कर दिया, उसका भी लेती हूँ. So yeah, whatever your doctor says, take those prenatals. Next is like what I started reading and watching and what were the apps that I had. तो मैंने सबसे पहले, and I would 100 नहीं 1000% recommend कि आप भी ये book read करो. What to expect when you're expecting. Oh my God, you come to know कितनी सारी चीज़ें, what actually is happening inside your body. और ये सारी चीज़ें इतना नॉलेज देती है एंड मेनली इतना अवेयर करती है. सो लाइक यू नो, फॉर एवरी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट वी वर प्रिपेयर्ड. हमें कुछ भी होता था, एंड मंथ वाइज रीड करना. वो डोंट लाइक यू नो, इट्स अ बिग थिक बुक, सो डोंट थिंक दैट यू हैव टू फिनिश इट इन अ मंथ और टू. मैंने मंथ वाइज रीड किया था. लाइक इफ आई वॉज एंटरिंग इन टू माई फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, तो तभी लास्ट वीक में मैं रीड करती थी. सो दोज आर जस्ट कपल ऑफ पेजेस, एंड उसमें what to do, what not to do, what you can expect, and what are the changes that your body will go through. And उसमें extremely सब कुछ cover किया हुआ है. More than half of the things are not going to happen to you, but even if it happens, आप पैनिक मोड में नहीं रहोगे. आपको पता रहेगा that yeah, this is normal. वरना मुझे तो ऐसे लगता है कि हाफ ऑफ द टाइम हम ER में जाते रहते कि शिट ये हो गया क्या करना है, ये हो गया क्या करना है. बट with this book, with this reading, it has helped us a lot. मतलब हर्ष भी रीड करता है, मैं भी करती हूँ, तो हम अवेयर रहते हैं कि या दिस आर द थिंग्स, ऐसा होने वाला है नेक्स्ट मंथ, सो बी प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट इज व्हाट आर द एप्स दैट आई हैव बीन यूजिंग. तो व्हाट टू एक्सपेक्ट करके ही ऐप है, वो भी मैं सारे लिंक्स डाल दूंगी. तो दैट ऐप इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल. उसमें एवरी वीक का ग्रोथ दिखाता है. एवरी वीक योर बेबी विल बी लाइक यू नो, क्या फ्रूट का साइज रहेगा वो बताते हैं. व्हाट आर द थिंग्स दैट बेबी इज डेवलपिंग वो बताते हैं. सो दैट लाइक यू नो, वेन एवर माई वीक चेंजेस, मैं और हर्ष इतने एक्साइटेड रहते हैं मॉर्निंग में ही, मतलब उठ के ओ या आज नया वीडियो देखना है. यू कैन सी फ्यूचर का, लेकिन हम वीकली ही देखते हैं. सो दैट इज मोर एक्साइटिंग फॉर अस. तो वैसे करके हमने लाइक यू नो, आज आई लाइक यू नो आईब्रोज उसका आएगा, आज आई लैशेस डेवलप होंगे, आज फिंगर नेल्स आएंगे. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. लाइक एवरी वीक का माइलस्टोन रहता है, एंड इट विल बी वेरी प्लेजेंटली एंड गुड थिंग दैट यू गाइस शुड डू एज अ कपल. मतलब वो ऐप बहुत सही है. एंड दूसरा ऐप बेबी सेंटर है, वो भी सिमिलर टू दिस है. योर बेबीज वेट, हाइट, सब कुछ बताता है वैसे ही. एंड देर आर सम टिप्स ऑल्सो. So both of these apps are really good. I have been using. If you have any other recommendation, leave it in the comments, तो बाकी सबको भी पता चलेगा. And the things that I watched during first trimester, इतना टाइम नहीं था हमारे पास कुछ देखने या करने में, लेकिन I stopped going to theaters. बोलते हैं कि वो जो noise radiations होते हैं, that's not good for your fetus. So avoid going for movies or concerts or anything like that. दूसरा मैंने थोड़े मेरे शो प्रेफरेंसेस चेंज कर दिए. नॉट मच इनटू एक्शन और लाइक यू नो वायलेंस और एनीथिंग. इट इज़ ऑन यू. मानते हो तो करो, मतलब मत करो. नहीं मानते तो डू वट एवर यू वॉन्ट. लाइक ऐसे मेरे को थोड़ा था, मतलब मेरे को और हर्ष को दोनों को, दैट लेट्स मतलब 9 months ही है, इतना तो क्या मतलब छूट जाएगा, देख ले. अरे नहीं देखते हैं, इट्स फाइन. एंड वैसे भी वी आर नॉट मच इनटू
like daily watching and everything. So the things that I watched were Netflix पे बेबीज करके है, वो मैंने देखा. फिर YouTube पे व्लॉग्स देखती रहती थी मैं. एंड ऑनेस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टाइम नहीं था कुछ और देखने का, क्योंकि घर मूव कर रहे थे, घर सेट करना था. सो टाइम उसी में सब में चला जाता था. ओके, सो this is it about my first trimester, my experience and everything, and what are the things that, like some of the things that you guys can do as well. Few things even I had, like started doing were applying stretch mark oils and creams, and I took maternity pillow from when we came over here. So approx second month you can say, second or third month you can say. So since that I'm using maternity pillow. Till date I don't have any back issues or anything, so I can highly recommend you to do that as well. दूसरा stretch mark के लिए मैंने day 1 से, like when we came to know I was pregnant, उसी week से मैंने coconut oil in the morning and bio oil in the night. This two I have been using. Stretch marks are like, it's a, even if you have, it's okay, it's cool, no problem at all, but if you want to avoid, मेरे को अब तक इतना ज़्यादा नहीं है. So it's just like कि आपकी skin hydrated और moisturized रहनी चाहिए at all times. So starting में मैं 2 बार लगाती थी. Coming to later weeks I started using 3 times as well, but these are the only 2 things that I have been using, and coconut oil is the best. लेकिन रात को फिर मेरे को बहुत थोड़ा वो स्टिकी हो जाता है, राइट, सो आई डोंट लाइक इट. तो रात को मैं बायो ऑयल यूज़ करती हूँ. बट इफ़ यू कैन अप्लाई कोकोनट ऑयल ओनली थ्रू आउट 3 times, 100% आई कैन से इट्स द बेस्ट थिंग. सो या, डू दैट. एंड like I said, यार, don't suppress any of your feelings, whatever it is, take it out. बोलते हैं कि when you are pregnant तो हमेशा खुश रहना चाहिए, happy mood में रहना चाहिए, but every day you cannot just keep on smiling and be happy. थोड़ी इमोशंस आते हैं, लाइफ चैलेंजेस रहती है, एवरीथिंग इज नॉट लाइक ला ला लैंड. तो वट एवर यूर फीलिंग, टॉक विथ योर पार्टनर. हर्ष वॉज वेरी 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 सपोर्टिव इन दैट मैनर. मेरे को जितनी बार रोना आता था, ही नेवर सेड मी दैट नो डोंट क्राई, चुप हो जा. उसने एक बार भी नहीं बोला. ही वुड बी लाइक ओके, जो फील कर रही है बोल दे, रो ले तू, लाइक इट्स ओके. सो it's okay to cry as well. Don't have that stress that if I'm crying and if I'm sobbing, my baby will also be like रोता ही रहेगा या रोती रहेगी. ऐसा नहीं होता है. So whatever you are feeling, that will be more healthy if you take it out rather than suppressing anything. And give your partner a break. मेरे को हर्ष को भी मैंने परेशान भी बहुत किया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसको अंडरस्टैंड भी उतना ही किया है, क्योंकि जितना चेंजेस हमारे लिए है उतना ही चेंजेस उसके लिए है. या वी गो थ्रू फिजिकल चेंजेस एज वेल, जो वो लोग नहीं चाहते हैं, बट इमोशनली एंड मेंटली इवन फॉर देम उतना ही रहता है. आई फील शायद मेरे से ज़्यादा उसको स्ट्रेस रहता है कि ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ मी एज वेल एज द बेबी. आई जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द बेबी, राइट? सो इट्स ऑलवेज गिव, cut them some slack, I would say. So yeah, that is it. That are some of my advice for the first trimester. And next trimester is very exciting. We traveled, we made baby registries, we did baby shopping, then baby shower, gender reveal and everything. So next trimester के vlogs भी बहुत सही होने वाले हैं. So make sure that you have subscribed to our channel, like करना ये वीडियो को, comment if you have any questions, or if you want to share anything, always available. So comment and let us know. And yeah, see you in the next video.